So good morning to all of you. Today we have to continue our exercise 2.5. Chapter 2 we are doing, that is polynomials. Yesterday we did the formula of a plus b whole cube and a minus b whole cube, right? The formula of a plus b whole cube was a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square, and formula of a minus b whole cube was a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. And now we are going to do the application of this formula, and we have to find out the value of 99 cube in first part of question number 7. So we are going to write it like, किस तरह से लिखेंगे बताइए? It will be written as, yes, right, 100 minus 1. आपने multiply नहीं करना है, you have to apply the identity. So 99 we are writing as 100 minus 1 whole cube. Now you can apply the formula a minus b whole cube, where a will be 100 and b will be 1, not minus 1. जब हम आइडेंटिटी ही माइनस वाली ले रहे हैं तो हम b को 1 लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, राइट? सो बाय द आइडेंटिटी इट मस्ट बी, यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस बी होल क्यूब की हमने आइडेंटिटी लगाई है, विच इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपने वैल्यू पुट की है a की 100 और b की -1। ठीक है, लेट वी पुट a as 100 cube minus 1 cube 3 into 100 square into 1 plus 3 into a is 100 and b is 1, so 3 into 100 into 1 square। ठीक है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 100 cube is 6 times 0, you will have to write minus 1 minus 3 100। ठीक है, so it will be 30,000 plus 3 multiply 100 will be 300। ठीक है, अब आपने करना है इन सबको प्लस माइनस अकॉर्डिंगली और निकालनी है इसकी वैल्यू। इसको और इसको प्लस करके उसमें से ये माइनस करना है। कितना आंसर आ जाएगा? जल्दी से करके आंसर बोलिए, कैलकुलेशंस करो जल्दी से। ओके, all are getting the same answer? 970299, this is going to be the answer। ठीक है, और अगर आप वैसे करते हैं 99 को 99 से मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा उसे 99 से मल्टीप्लाई, उससे आपकी ये कैलकुलेशन इजी पड़ती है, राइट? सो वी हैव टू अप्लाई द आइडेंटिटी to get the value of 99 cube. We have written it as 100 minus 1 whole cube, a minus b whole cube की आपने आइडेंटिटी लगाई, which is a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square। अब जब हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो you have a as 100 and b as 1, तो जहां जहां पर आपका a आ रहा था वहां 100 पुट कर दिया, जहां b आ रहा था वहां 1 पुट कर दिया है, and we have done the calculations। ठीक है, कैलकुलेशंस करके आपका ये आंसर आया है 970299। I hope you have taken the screenshot if you want। Yes, so coming on the next part, in the next part you have to tell the value of 102 cube। Second part, okay, कर भी लिया, very good। Second part is 102 cube, so this can be written as 100 plus 2 whole cube। अब आपकी आइडेंटिटी बनती है a plus b whole cube की, क्योंकि बीच में प्लस साइन आ गया। सो वी हैव a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square। ठीक है, और इसमें a की जगह 100 and at the place of b we are putting 2। Why these students are not able to get the entry? चले, so at the place of a we have to write 100 और b की जगह पे हम पुट कर रहे हैं 2 plus 3 into 100 square into 2 plus 3 into 100
इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं 100 सॉरी क्यूब। सो दिस इज right, 6 times 0 because cube is there, plus 2 to the 4 to the 8, plus 100 square is 10,000, 10,000 into 3 is 30,000, and no, not 30, this 2 is also there, so it is going to be 60,000 plus 2 to the 4, 4 3 is 12, so 1200, and you have to add all these terms and you will be getting 1061208. Very good, those who have given the answer. ठीक है, so this is the answer. We have applied the identity a plus b whole cube. You just have to identify the identity and then you have to simplify it. Next is 998 cube. You will write it as what? 998 को क्या लिखेंगे? अच्छा, आंसर्स बता रहे हैं. 1000 minus 2. Yes, very right. 1000 minus 2 लिख के आपकी a minus b whole cube की आइडेंटिटी लगेगी. Can I leave this part? 1000 minus 2 whole cube, फिर आपकी a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. You just have to put the values and do the calculation. So this part you are going to do yourself. I am coming on question number 8. Factorize each of the following. अब आपके पास फिर से कभी expand कभी factorize, सिर्फ यही दो questions चल रहे हैं पूरी exercise में. ठीक है, next question 8 question का first part है 8 a cube plus b cube plus 12 a square b plus 6 ab square. आपने सिर्फ इसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें आपकी कौन सी आइडेंटिटी लगती है. कौन सी आइडेंटिटी? a क्यूब b क्यूब नजर आ रहा है, a स्क्वायर b नजर आ रहा है, ab स्क्वायर नजर आ रहा है और सारे पॉजिटिव साइन है. दैट मींस आपको ये पता लग गया कि यहाँ आइडेंटिटी जो है वो आपकी a प्लस बी होल क्यूब होने वाली है. अब काम रह जाता है इसमें a और b फाइंड आउट करने का कि इसमें आप क्या तो a लोगे और क्या आप b लोगे. ठीक है, so here we are writing this 8 as 2a whole cube. Can it be written like this? क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, a क्यूब होता है, so 2a whole cube is 8a cube. ठीक है, और ये हो गया आपका b क्यूब. यहाँ से आपको ये पता चल गया कि आपका a ये है, b ये है. आप रिमेनिंग एज इट इज लिखना चाहें तो एज इट इज लिख दीजिए, और अगर आप इसको 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है. 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वायर. मुझे a और b पता लग गए इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर लिख दिया. एक बार ये लिख के चेक भी कर लेते हैं कि क्या सच में ये आपस में इक्वल आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे. 2 स्क्वायर 4, 4 3 12, ये रहा 12, a स्क्वायर b, ये पूरी टर्म आपकी ये बन चुकी. ठीक है, सिमिलरली ये टर्म आपकी 6ab स्क्वायर होनी चाहिए, 3 2 6 ab स्क्वायर. बिल्कुल ठीक है. ठीक है, तो यहाँ से आपकी आइडेंटिटी बन जाती है a प्लस b, 2a प्लस b होल क्यूब. हो गया क्लियर? आपने सिर्फ a और b की सबसे पहला काम है आपने आइडेंटिटी पहचाननी है कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी आपकी लगी हुई है. उसके बाद आपका काम है उसमें से a और b ढूंढ कर आना. ठीक है जी, बिल्कुल 2a plus b whole cube, right? So you just have to identify the identity and then the values of a and b and your question will be done. Coming on the b part, 2a plus b 3 times. हाँ जी बिल्कुल 2a plus b 3 times, बिल्कुल ठीक है सिद्धार्थ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने लग गए. अब चलिए कमिंग ऑन द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में है आपका 8 a क्यूब माइनस बी क्यूब. अब माइनस नजर आने लग गया, इसका मतलब आपकी कुछ आइडेंटिटी a माइनस बी होने वाली है. 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर. ठीक है, इसका मतलब आपको ये तो पता चल गया आपकी आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब होने वाली है क्योंकि माइनस भी आ गए
और ये a क्यूब b क्यूब a स्क्वायर भी a b स्क्वायर, कुछ इस तरह की टर्म्स भी आपको मिल गए। अब आपका काम है ये आइडेंटिफाई करना कि आपके पास a की जगह पर आपने क्या लिखना है एंड व्हाट यू हैव टू राइट एट द प्लेस ऑफ b। इसको लिखते हैं फिर से 2a होल क्यूब माइनस b क्यूब, बाकी आ गया आपको पता ही है 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये सारी टर्म्स आपको एज इट इज मिल जाएंगे। इसको आप ब्रेक करके लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, अदरवाइज इफ यू वांट टू राइट इट लाइक दिस ओनली यू कैन। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब, ये आपका आ जाएगा आंसर। डन, क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है मिस्टर कॉमर मुकुल। ओके चलिए नेक्स्ट पार्ट। देखो यहाँ पर तो आपके क्या है, क्वेश्चन सीक्वेंस में आए हुए हैं, तो आपको पहले ही पता है कि इन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी लगने वाली है, बट आपके जब एग्जाम में आएंगे तो सारी आइडेंटिटीज के क्वेश्चन मिक्स आएंगे। ठीक है, सो थर्ड पार्ट इज 27। 27 किसका क्यूब होता है? -125 ए क्यूब। अच्छा माइनस आ गया, माइनस आ गया तो ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी होने वाली है। 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। हाँ जी बिल्कुल, 27 होता है 3 का क्यूब, और 125 किसका क्यूब होता है? 125 इज द क्यूब ऑफ 5। राइट 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 राइट, सो इस क्यूब, इसको लिख देते हैं 3 क्यूब माइनस 5 ए पूरे का क्यूब। ठीक है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए था कि ए और बी क्या आ रहे हैं, आ गए आपके ए और बी, और बाकी टर्म्स आप एज इट इज लिखना चाहो एज इट इज लिख दो, खोल के लिखना चाहिए चाहे खोल के लिख दीजिए। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, जल्दी बताओ व्हाट टू राइट। a minus b whole cube and here a is 3 and b is 5 है, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सभी। so it will be 3 minus 5a whole cube। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। now you just have to identify again, telling a और b की वैल्यू भी आइडेंटिफाई करनी है हमने, और तो हमारा सारा क्वेश्चन हुआ हुआ है। नेक्स्ट पार्ट है 64 a क्यूब। अच्छा समझ में आ गया, वेरी गुड। 27 b क्यूब। अच्छा क्वेश्चन लिखने से पहले ही आंसर आ रहा है। -144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन आ रहे हैं, दैट मीन्स आपकी ए माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी होने वाली है। ए माइनस बी होल क्यूब आपकी आइडेंटिटी होगी, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज ए व्हाट इज बी। सो दिस 64 आई एम राइटिंग एज 4a होल क्यूब because 4 4s are 16, 16 4s are 64, minus this is 3b whole cube, बाकी टर्म्स एज इट इज लिख दो, बस आपको तो ए और बी चाहिए था। माइनस और प्लस देख के आपको सारा पता लग ही चुका है कि आपकी कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 4a माइनस 3b होल क्यूब, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, आइडेंटिटीज अगर लर्न है तो क्वेश्चंस इजीली होंगे, otherwise this chapter will be a big problem for you all अगर आइडेंटिटीज लर्न नहीं है तो। चलिए कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इरेज कर रही हूं मैं इसे। ओके अगले क्वेश्चन का, अरे वाह। नेक्स्ट पार्ट इज 27 पी क्यूब, कर रही हूँ इरेज 1 2 3। नेक्स्ट पार्ट है आपका 27, दिस इज द फिफ्थ पार्ट, पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2, माइनस माइनस आ रहा है तो माइनस से कुछ तो पता चल ही गया, पी स्क्वायर प्लस 1/4p। ठीक है, तो चार टर्म्स हैं, चार टर्म्स से आपको आइडेंटिटी मिलने वाली है।
ये हो गया आपका 3p होल क्यूब। अच्छा 216 किसका क्यूब होता है? 1/6 होल क्यूब। आपको पता चल गया ये a है ये b है। -9/2p² प्लस 1/4p। बाकी दो टर्म्स हम एज इट इज लिखते हैं और ये आंसर किसके इक्वल होने वाला है? 3p minus 1/6 होल क्यूब। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है 3p minus 1/6 क्यूब। यस यस राइट जी। मुझे सबके आंसर्स दिख रहे हैं, ये मत सोचना कि मैं नाम नहीं ले रही तो मुझे पता नहीं है। ऑल ऑफ योर आंसर्स आर इन फ्रंट ऑफ मी। कर रही हुई रेस में और जो नहीं बोल रहे हैं उनका भी पता चल रहा है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइडेंटिटी चेंज होने वाली है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज x³ प्लस y³। देखो इसमें आपको दिया तो ये क्वेश्चन हुआ है बट आपको इसे एज एन आइडेंटिटी याद करना है। x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस y x² माइनस xy प्लस y²। ठीक है हमने ये वेरीफाई करना है कि ये लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है। ठीक है लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल करने के लिए इसको तो हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, ये तो पहले ही बेचारा सिंप्लीफाइड है। इसको हम सिंप्लीफाई जरूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसमें आपस में इन दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई होकर ये इसके इक्वल आ जाता है तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड द क्वेश्चन विल बी डन। ठीक है तो हम ले रहे हैं इसके बिल्कुल मल्टीप्लाई मन्नत राइट। सो वी आर टेकिंग द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में दोबारा से लिख रही हूँ x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। अच्छा मल्टीप्लाई करते कैसे हैं? पहले एक टर्म लेते हैं उसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को पहले इससे करते हैं, x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू x² हो गया x³। ठीक है फिर x को किया x² y से xy से सो ये हो गया माइनस x² y क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो आंसर आएगा नेगेटिव। देन x मल्टीप्लाई y²। पहले मैंने इसको इससे किया अब इसको इससे और अब इसको इससे सो इट इज गोइंग टू बी x y²। ठीक है अब आ जाते हैं यस इट्स प्रूव्ड। ओके y को x² से करो x² y y को कीजिए xy से सो इट विल बी माइनस xy² और अब करते हैं y को y² से इट विल बी y³। जो टर्म्स आपकी राइट टर्म्स है विद ऑपोजिट साइन है यू कैन कैंसिल देम। x² y ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई। xy² पॉजिटिव xy² नेगेटिव ये दोनों टर्म्स भी हो गई कैंसिल और क्या रह गया x³ प्लस y³ ये आ गया नॉट आंसर which is equal to the left hand side hence verified। अब सेम है आपका नेक्स्ट पार्ट जो आपने खुद करना है। ठीक है आपने सिर्फ इसको ये पूरी ब्रैकेट को प्रूव करना था ये इसके इक्वल होती है। ठीक है अगर आपको कहीं इस रिजल्ट को डायरेक्ट भी यूज करना पड़े यू कैन लर्न इट एज अ फॉर्मूला x³ प्लस y³ किसके इक्वल होता है x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। आप डायरेक्ट इसको ये फॉर्मूला की तरह भी यूज कर सकते हैं। पूरा सारा देख लो प्लस है सिर्फ एक ये माइनस आ गया प्लस वाली आइडेंटिटी में। इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट है ना उसमें भी एक ही माइनस आएगा। अगला पार्ट जल्दी से ट्राई टू डू योरसेल्फ बिकॉज ये हम क्यों कह रहे हैं कि इसको हमने फॉर्मूला की तरह यूज करना है क्योंकि 10th क्वेश्चन में यही फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है। एक में फर्स्ट पार्ट यूज हो जाएगा एक में सेकंड पार्ट यूज हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रूव्ड मन्नत हैज प्रूव्ड द नेक्स्ट पार्ट आल्सो। व्हाट अबाउट अदर्स? सिर्फ मल्टीप्लाई करना था काट देना था आंसर आ जाना था। और किस किस का हो गया? ओनली वन? हरी अप हरी अप हरी अप। Yug has done verified. Kushi has done. चलिए कर दें इसे रेज। क्वेश्चन 9 सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 9 सेकंड पार्ट
हाँ जी, मुझे पता है आपने कर लिया योग। ओके, आगे करके दिखा रहे हो वंदिता, एक भी नंबर कम आया, बहुत पिटाई होने वाली है। चलिए 10th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है आपका 27 y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। ठीक है, अब आपने लगानी है, इसको फैक्टराइज करना है, मतलब फैक्टर्स बनाने हैं, मतलब आपने कुछ ऐसा लेके आना है जो ब्रैकेट्स के अंदर वन हो। तो इसको बनाने वाले हैं हम a क्यूब प्लस b क्यूब में कन्वर्ट करने वाले हैं। इट विल बी 3x होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है कौन से वाली, x क्यूब प्लस y क्यूब वाली। और ये आपके पास किसके इक्वल है, x प्लस y, जो भी अभी आपने प्रूव किया है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपका काम क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ x की जगह पे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ऐसे कैसे वेरीफाई हो सकता है अगर इक्वल ही नहीं आएंगे तो? वेरीफाई तो नहीं हुआ ना, शौर्य दोबारा से करना। ओके, सो x की जगह पे क्या है 3x, y की जगह पे क्या है 5z। तो जहां पर भी आपका x आ रहा है वहां 3x पुट कर दो, जहां y आ रहा है वहां 5z पुट कर दो। दिस इज 3x होल स्क्वायर माइनस 3x मल्टीप्लाई 5z प्लस 5z होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। फर्स्ट ब्रैकेट तो हमारी प्रूव्ड है, ठीक है। दूसरी ब्रैकेट में 3x का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर माइनस 3 5 15 एक्स जी प्लस 5 स्क्वायर इज 25 जी स्क्वायर। ठीक है, विजिबल है, लेट मी चेक। हाँ जी, ठीक है, बस ये लास्ट ब्रैकेट ही है ये आपको। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमने फैक्टराइज करना था, हमने इसे फैक्टराइज कर दिया। कहाँ से हमें पता चला कि ये फैक्टराइज हो चुका है, क्योंकि हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ चुकी हैं जो मल्टीप्लिकेशन में है। जब हमारे पास सारा कुछ मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है तो वो फैक्टराइज हो जाता है। मन्नत क्या लिख रहे हो बेटा, 5z व्हाट, ओह या हियर आई फॉरगॉट टू राइट z, yes, so 3x plus 5z is first factor and the second factor is 9x square minus 15xz plus 25z square। ठीक है, अब इसी तरह से हम नेक्स्ट में भी लगाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी तरह से, यहाँ पर आपने x क्यूब प्लस वाई क्यूब लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है विद माइनस आइडेंटिटी। देखिए एनसीईआरटी में बेटा सारे सिर्फ आपको मेथड क्लियर करवा देते हैं, एक एक क्वेश्चन एक आइडेंटिटी दे दी, उसका एक क्वेश्चन दे दिया, बट सिर्फ इतना करने से हमारा काम नहीं चलता है। सो वी हैव टू डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो। यू विल हैव टू गो विद सम एक्स्ट्रा बुक, एनी रेफरेंस बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका 64n क्यूब माइनस 343n क्यूब, 64n क्यूब माइनस 343n क्यूब फैक्टराइज करना है। प्लस माइनस में टर्म्स हैं, हमने मल्टीप्लाई में लेकर आना है। मैम इट इज 3y नॉट 3x, कौन से क्वेश्चन में कर दिया? अच्छा, जो भी प्रॉब्लम थी बेटा उसको करेक्ट कर लेना, हो सकता है मैंने बाय मिस्टेक y को x लिख दिया है, तो उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, ओके, इसको क्या लिखूं, 64 इज द क्यूब ऑफ व्हाट, दिस इज 4m क्यूब माइनस 343 इज द क्यूब ऑफ व्हाट, 7, so this is 7n क्यूब। ठीक है, नाउ दिस इज x क्यूब माइनस y क्यूब, हमारी x क्यूब माइनस y क्यूब वाली आइडेंटिटी बन रही है। एंड x क्यूब माइनस y क्यूब अभी तो आपको लर्न नहीं होगा, तो आप इसे लर्न करेंगे। इट इज इक्वल टू x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ओके, सो एट द प्लेस ऑफ x we have to put 4m, at the place of y we have to put 7n, 4m minus 7n, and this is 4m square plus 4m multiply 7n plus 7n square। ठीक लिखा है,
राइट, ओके। सो ये हो गया आपका 4m minus 7n. This is the first factor, and the second factor is going to be 4 square is 16 m square plus 7 fours are 28 mn plus 7 square is 49 n square. ठीक है, तो आपके ये दो फैक्टर्स आए हैं 4m minus 7n, and the second factor is 16m square plus 28mn plus 49n square. ठीक है, I hope it is clear to you all. अच्छा, इसके बाद वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। 11, 12, 13 and 14 question are not there in your syllabus. 11, 12, 13 and 14. You have to do 15th question and 16th question. 15th question में have you done? नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना। हाँ, मल्टीप्लाई सिर्फ, ओके, यू आर जस्ट टेलिंग मी। बाद में इसको देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि इसको आपस में फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इसको वापस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। फैक्टर्स बनाने हैं, तो ये फैक्टर्स आपके, जब दो ब्रैकेट्स आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन में मिल गया तो आपके फैक्टर्स आ जाते हैं। 11 to 14, हाँ जी ऑमिट है, ठीक है, ओके। नाउ एक बारी थोड़ा सा, I think we will have to take one more class to finish this chapter. चलिए फिर भी let me try. मैं एक एक पार्ट करवा रही हूँ। 25a square, this is the area given, minus 35a plus 12. ये एरिया है, मुझे लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। I know that the area is equal to length multiply breadth. ठीक है, चलो मैं ये दो क्वेश्चंस जो आपके रहते हैं ये अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज अभी करते हैं तो थोड़ी ज्यादा होच पोच हो जाएगी। सो आज के लिए आपकी पढ़ाई इतनी ही। मेरी तरफ से आपकी पढ़ाई वाला टाइम होता है ओवर।